Yeah, hi. Good afternoon, everyone. Welcome to another edition of Decode the Market with Expert. Today, I have Mr. Pradyut Patnaik. He is the head of Lotus Fund. It's a research. He's a SEBI-registered research analyst, and he has got more than 30 years of experience in the market as a trader, as a research analyst, as an investor. So before I start, very quickly, let me read out the disclaimers. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Representations are not indicative of future results. All the discussions are purely educational in nature and are in no way an advice or recommendation. Now, having said that, first of all, welcome everyone. So first of all, uh, we'll keep the language of the सेशन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखेंगे। सेकंड थिंग, जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हो, कोई स्टॉक्स को इवेलुएट करने हो, प्लीज फील फ्री, पुट इट इन द चैट बॉक्स। एंड ऑल्सो ये बात कि जो भी हम लोग डिस्कस करूंगा स्टॉक्स का, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस, राइट? दीज आर प्योरली एनालिसिस by an expert. Don't consider it as a direct recommendation. So, Pradyut ji, welcome to the Yes, show. thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me on your platform, Paytm's platform. Wonderful. So, Pratik, first thing first, let's take a stock of the market now. हम लोग ने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों से मार्केट कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। ऑफ कोर्स उससे पहले हम लोग ने एक अच्छा खासा रैली देखे थे, वेरी शार्प वन वे रैली एंड करेक्शन। नाउ क्या है, इज इट द करेक्शन ऑफ द रैली दैट वी हैव सीन, और what is the status of the market? What are the factors that are affecting the market right now? Sir, honestly speaking, Nifty has been falling, and today is the fifth day of consecutive fall, Nifty ka. And we have been falling from 25,464, 450, 460 levels. And we have come down all the way now. I think as we speak, we are below the psychological 25,000 mark. So around 1.5% का fall हम लोग को देखने को मिला है last 4 trading sessions में. Mhm. My sense is that things have little bit changed towards the markets weakening. I think the markets have more room to go down than up. That's what the sense is. There are Mhm. three negative catalysts, as we all know. The two is very common, which is related to India. First of all, US और इंडिया का जो टैरिफ है 50%, that is really very steep. ठीक है। और सेकंड जो है, अभी जो लास्ट सैटरडे को आया, वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का H1B वीजा का है। So that has taken everyone by surprise, and my sense is that these two reasons are quite a big negative catalyst for our market. It will Mhm. definitely dent sentiment, and it has dented the sentiment. As we see, Nifty is trading below psychological 25,000 mark. मुझे अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर कि Mhm. अभी भी जो फॉल हुआ है 1.5% का 2% का जो फॉल हुआ है आफ्टर दीज टू टैरिफ के कारण, तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था बिकॉज इट वाज ए नोन फैक्टर। Mhm. बट ये समहाउ ये जो फीस का लेके आया, इमिग्रेशन फीस का लेके आया है H1B वीजा का, तो वो कहीं ना कहीं अभी तक मार्केट ने उसको ये नहीं किया है, एड्रेस नहीं किया है। माई सेंस इज दैट वी कैन फॉल फर्दर प्रॉब्ली द वे डाउन प्रॉब्ली टू 24,350, वो जो निफ्टी का अगस्त का लो है बेसिकली, तो वहां तक वी Mhm. कैन फॉल डाउन because of these two things Mhm. basically. And the other factor which is denting sentiments, I think last 2 days से वॉल स्ट्रीट में भी, वो ये है कि जेरोम पोवल का एक स्टेटमेंट जो परसों आया था, वो Mhm. ये आया था कि he is basically concerned, the Federal Reserve is basically concerned with regards to the sticky inflation in the US, एंड स्पेशली ये ट्रम्प का इमिग्रेशन लॉस हुआ, और जो लेबर वहां पे पेरोल, नॉन फॉर्म पेरोल में एक ये सुधार नहीं आ रहा है, तो ग्रोथ को लेके कहीं ना कहीं कंसर्न है। तो डबल Mhm. वैल्यू है वहां पे। एक तो इंटरेस्ट रेट्स उन लोगों ने कम किया है रिसेंटली Mhm. 25
पॉइंट। उसके हम्म चलते अगर इन्फ्लेशन एक स्पाइक हो जाता है और ग्रोथ हम्म पिकअप नहीं करता है, तो हम लोगों को देखने को यह मिलेगा कि वॉल स्ट्रीट भी ये गिर सकता है, प्रॉफिट मैसिव प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आ सकता है। हम्म तो अब दो चीज है सर यहाँ पे। हम्म एज यू ऑल नो कि वॉल स्ट्रीट इज स्टिल ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई, विच हम्म इज, अगर आप देखोगे तो ईयर टू डेट डाउ इज अप अराउंड 9%, नैस्डैक देखोगे तो 15% है। अगर इमर्जिंग मार्केट्स में अगर बोवेस्पा देखोगे तो इट इज अप अराउंड 23%, ब्राजील हम्म बोवेस्पा मार्केट्स में। अगर आप जर्मन यूरोप में जर्मनी को लेते हो तो जर्मनी इज ऑल्सो अप 24-25%, हम्म जापान इज अप 21%, शंघाई शंघाई इज अप 15 to 16% अप है। तो हम्म Hang Seng is also up 21%. तो कहीं ना कहीं all these markets are trading flirting with their all time highs. हम्म अब दो सिनेरियो हो सकता है, आइदर वी कैच अप, और अगर वो गिरेंगे तो क्या होगा। दो क्वेश्चन है हम्म सर। ठीक है। हम्म अब हम लोगों का ऊपर बढ़ना तभी पॉसिबल हो सकता है कि इधर वॉल स्ट्रीट में या ये ग्लोबल मार्केट्स में एक मैसिव रैली आए, तो हम लोग हो सकता है वी कैन लिटिल बिट कैच अप देम। हम्म ठीक है। और सेकंड चीज है कि अगर यूएस मार्केट्स अगर गिरता है, सो सिंस वी हम्म आर अंडर परफॉर्मिंग, प्रॉब्ली हो सकता है कि ना वी में अंडर परफॉर्म ए लॉट, वी में अंडर परफॉर्म मैसिवली, सिग्निफिकेंटली वी कैन अंडर परफॉर्म हियर फ्रॉम हियर ऑन। तो वी हम्म हैव टू वॉच ऑल द डेटा पॉइंट्स गोइंग फॉरवर्ड। जो इमीडिएट डेटा पॉइंट्स है जो यूएस में है, वो है फ्राइडे को इन्फ्लेशन डेटा है यूएस में फ्राइडे हम्म को। अगर वो इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा भी स्टिकी आता है तो उधर एक मैसिव सेल ऑफ दिख सकता है वॉल स्ट्रीट में। अगर हम्म वॉल स्ट्रीट में सेल ऑफ दिखता है, ग्लोबल मार्केट्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो अपना हम्म बाजार मैसिवली अंडर परफॉर्म करेगा सर। हम्म तो वो सिचुएशन, वो सिनेरियो थोड़ा खराब हो जाता है बुल्स के लिए। करेक्ट बट अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, एंड ये जो फ्राइडे को इन्फ्लेशन फिगर आने वाला है यूएस में, अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, तो हो सकता है कि वॉल स्ट्रीट में लिटिल बिट आउट परफॉर्म, तो हम लोग भी एक कैचअप प्ले कर सकते हैं। वी आर अप 4% ईयर टू डेट, प्रॉब्ली 6-7% तक हम लोग जा सकते हैं। हैविंग सेड दैट, फ्रॉम हियर ऑन स्टॉक पिकिंग विल बी ए चैलेंज। हम्म स्टॉक पिक, ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार खराब है। निफ्टी एक स्लगिशनेस में है, बैंक निफ्टी एक स्लगिशनेस में है, एफएमसीजी एक स्लगिश में है, बट अदर सेक्टर कंजम्पशन जैसे ऑटो इंडेक्स हो गया, दीज मेटल्स में एक अच्छा रैली देखने को मिला है। तो वी कैन लुक एट, कैन वी लुक एट द चार्ट्स ऑफ दी स्टॉक्स एंड इंडिसेस एंड टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर सर। प्लीज प्लीज तो कहने का मतलब मैं एक और बार बोलूंगा कि दो सिनेरियो है। अगर यूएस के मार्केट्स गिरते हैं तो अपना मार्केट सिवियरली अंडर परफॉर्म करेगा। एज वी हम्म आर अंडर परफॉर्मिंग, तो अंडर परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा सर, हम्म मैसिवली अंडर परफॉर्म होगा। अगर यूएस मार्केट्स अगर ऑल टाइम हाई के साथ वहीं पे अगर ट्रेड करते हैं और थोड़ा सा अप रहेंगे, तो प्रॉब्ली वी में मूव अप, वी में बी रेंज बॉन्ड विद हम्म नेगेटिव बायस ओनली सर। दैट्स व्हाट माय हम्म सेंस। I करेक्ट will just share the charts of Nifty. First, we will take the charts of Nifty. श्योर So on my left hand side sir, for बहुत इजी किया मैंने। निफ्टी का ये चार्ट है सर। ठीक है। हम्म ये डेली चार्ट है निफ्टी का। अंडरलाइन में ना ये राइट हैंड साइड, आई हैव डिवाइडेड द चार्ट्स इनटू टू पैटर्न। ठीक है। हम्म एक निफ्टी का चार्ट है और एक निफ्टी का विथ मोमेंटम ऑसिलेटर्स है सर। ठीक हम्म है। तो ये बॉटम लाइन जो है यहाँ पे, निफ्टी रिलेटिव टू निफ्टी, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ए फ्लैट लाइन ओवर हियर। अगर मैं इसको अगर सपोज बैंक निफ्टी में करता हूं, तो बैंक निफ्टी का आपका अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस दिखता है यहाँ पे। सो फर्स्ट कंसिडरिंग द निफ्टी चार्ट, इट इज, मैं निफ्टी के चार्ट्स में बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। जो ग्रीन लाइन है ये 21 डे मूविंग एवरेज है। हम्म जो ये पर्पल लाइन है वो 50 डे है, और ब्लू लाइन इज 100 डे, एंड 200 डे में 400, 200 डे में है सर। सो एज वी सी, पहले मंथली चार्ट्स देख लेते हैं। मंथली चार्ट्स में निफ्टी इज एट ओवरबॉट लेवल्स है। यहां पे हम्म मैं आपको दिखाता हूं मंथली चार्ट्स में, ये ऑसिलेटर्स के साथ दिखा रहा हूं। ठीक है। ऊपर में जो इसका ऑल टाइम हाई था 26,277, उसके आसपास ही है निफ्टी। हम्म अगर आप ये 4 महीने का अगर आप देखोगे पैटर्न्स, तो बेयर्स आर लिटिल बिट ऑन द
ऑन द इन द कंट्रोल बेसिकली। हम्म यहाँ पे आप पेरिस एनगल्फिंग पैटर्न टाइप एक देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी में हम्म मंथली चार्ट्स में आया। एंड निफ्टी इज अनेबल टू मूव अबाउट दिस लेवल। So हम्म as long as we are not moving about 20, yeah, this level, this high is 24,650, हम्म 670. So as long as we are not moving about 24,670, caution should be the buzzword for investors at the Dalal Street, sir. Technically, करेक्ट ठीक है। एंड हैविंग सेड दैट, अगर निफ्टी इफ इट्स ब्रेकिंग डाउन बिलो दिस लेवल 24,337 जो अगस्त का लो है, देन अगर किसी कारण अगर ये 24,337 के नीचे नहीं गिर जाता है, तो प्रॉब्ली वी में कम डाउन टू निफ्टी 200 डीएमए विच इज एट 24,150 सर। इतना फॉल हम्म आ सकता है आपको। करेक्ट। तो हम्म निफ्टी का चार्ट्स जो मेरा सेंस है, वीकली में भी देखो एक सेलिंग देख के फिर ऊपर गया था अपना बाजार बेसिकली करेक्ट जीएसटी के इसमें, बट अगेन सेलिंग ही आया है बाजार। तो ओनली द मेक और ब्रेक सपोर्ट हमको यहाँ पे वॉच करना है, वो है हम्म 24,337। सो इफ 24,337 ब्रेक्स, देन मेरा सेंस है कि कॉशन तो हो ही जाना चाहिए सर। और थोड़ा सा लेवरेज पोजिशन अगर किसी का भी है तो उसको थोड़ा हम्म सा डाइल्यूट करना चाहिए सर। That's what my हम्म sense is. And the objective for the Nifty would be at its 200 DMA. This is on the हम्म daily chart. This is the level, sir. जहां पे आ सकता है 24,150 लेवल्स पे। ओके और अगर आप निफ्टी का यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, डेली चार्ट देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता हुआ नजर आ रहा है सर हम्म निफ्टी में। ये देखो लेफ्ट शोल्डर है, हेड हुआ, हम्म और एक राइट शोल्डर थोड़ा सा एक्सटेंडेड हुआ, एंड इट इज हम्म फॉलिंग शार्पली। द मोमेंट 24,337 ब्रेक्स, आपको एक अलर्ट आना ही चाहिए सर। तो अगर अगर मैं ट्रेडर हूं, बुलिश ट्रेडर हूं, तो मेरे को लॉन्ग पोजिशन 24,500 के ऊपर ही करना चाहिए, 450 के ऊपर। हम्म अदरवाइज मेरे को एट द मोमेंट बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है निफ्टी में सर। हम्म करेक्ट। दिस इज द चार्ट्स ऑफ निफ्टी। एंड अभी हम लोग बैंक निफ्टी ले लेते हैं। करेक्ट बैंक निफ्टी में भी दिस इज द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। हियर ऑल्सो द बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता हुआ डेली चार्ट्स में, हम्म बैंक निफ्टी में, सॉरी। हम्म सो दिस लेवल इज अराउंड 53,500 सर। हम्म अगर ये लेवल अगर कहीं पे भी अगर ब्रेक होता है कभी भी, तो हम्म तो इट्स डेफिनेटली ए बेरिश साइंस फॉर द मार्केट। एक टिपिकल एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है इसका बैंक निफ्टी में। इसका, और अगर आप देखोगे, एंड दिस इज दिस लाइन ऑन द डाउन साइड, ये है निफ्टी बैंक निफ्टी रिलेटिव टू निफ्टी। अगर दिस हम्म दिस लाइन इज मूविंग अप, हम्म correct, it's holding a trend line, this indicates that bank nifty is outperforming। हम्म अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है, तो बैंक निफ्टी विल स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी सर। इट्स ए ट्रेंड लाइन, दिस इज रिलेटिव, बैंक निफ्टी रिलेटिव टू निफ्टी है ये सर। ये हम्म अगर ये लाइन नीचे जाता है तो डेट मीन्स आरएससी लाइंस अगर नीचे जाता है तो डेट मीन्स बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस सर। करेक्ट करेक्ट। तो बैंक निफ्टी एक रिलेटिव चार्ट्स में एक अंडर परफॉर्मेंस देने का तैयारी में है। और अगर एब्सोल्यूट चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आपको लॉन्ग करना है कभी भी, तो 56,100 एक लेवल है, रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट लेवल। ओनली अबव 56,100 बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजिशन सोच सकते हैं सर। एट द मोमेंट बायस इज डेफिनेटली न्यूट्रल टू नेगेटिव। करेक्ट ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट्स। एंड अगेन सेम पैटर्न्स आ रहा है सर, यहाँ पे भी स्टीपली नीचे आया, एक रिबाउंड आया है, बार्गेन एंडिंग ऐसा कुछ है, बट अगेन इट्स द मोमेंटम इज बिल्डिंग ऑन द अपसाइड। और ये मंथली चार्ट्स है। मंथली चार्ट्स में बैंक निफ्टी में पूरा 2 मंथ से लगातार वीकनेस है, बेयर्स आर टोटली इन कंट्रोल। और भी ये जो आया प्रॉब्ली हो सकता है ये डेड कार्ड बाउंस है। द कंफर्मेशन विल कम बिलो 53,500 सर। ओके Correct. Now we will pick up the outperforming sectors, sir. ठीक जो है सेक्टर्स जो सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, आउट परफॉर्म में अभी कर रहा था ऑटो ऑटो इंडेक्स, जो हम लोग लास्ट टाइम बुलिश थे। देखो ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है निफ्टी ऑटो इंडेक्स।
ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इनफैक्ट इसने ऑल टाइम हाई एक नया दर्ज किया है निफ्टी ऑटो हम्म इंडेक्स ने। तो कभी भी अगर कुछ मार्केट में वीकनेस आता है तो माय सेंस इज दैट ऑटो इंडेक्स विल सी द, उसमें बाइंग आना चाहिए, उसमें लोग इनिशिएट करेंगे लॉन्ग पोजीशंस, बिकॉज इट हम्म हैज ऑलरेडी indicating that it wants to move above its all-time high. It's the first हम्म index which is moving above its all-time high. तो हम्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज एट ओवरबॉट लेवल्स में है बैंक निफ्टी। एनी हम्म टाइम आपको अगर इसके 200 डीए में है और 23,500, इट्स ट्रेडिंग एट 26,800 नाउ। तो कभी 23,500 के आसपास अगर आपको दिखता है बैंक निफ्टी, कभी कोई कारण में पैनिक आता है, तो द फर्स्ट इंडेक्स विच यू नीड टू बाय, द फर्स्ट स्टॉक्स विच यू नीड टू बाय फ्रॉम द सेक्टर इज ऑटो इंडेक्स, हम्म purely on the basis of performance that this sector is likely to outperform going forward technically, sir। श्योर। परफॉर्मेंस है इसमें, अगर आप ये रिलेटिव चार्ट्स भी देखते हो बैंक निफ्टी का, देखो ऑटो इंडेक्स कितना अच्छी तरह से आउट परफॉर्म किया है, करेक्ट। एंड करेक्ट। ये आउट परफॉर्मेंस प्रीवियस आउट परफॉर्मेंस से ऊपर जाने का कोशिश में है, हम्म करेक्ट। तो बट हैविंग सेड दैट इन द नियर टर्म चार्ट्स इट्स एट ओवरबॉट लेवल्स ऑटो इंडेक्स, तो कभी भी डिप्स में बाइंग करने के लिए यू हैव टू बी रेडी ऑन दैट, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो मेरे को जो सेक्टर जो और एक अच्छा लगता है वो है मेटल्स, निफ्टी हम्म मेटल्स। निफ्टी मेटल्स भी एक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है सर। हम्म आफ्टर ऑटो इंडेक्स निफ्टी मेटल इंडेक्स है जहां पे एक सॉलिड आउट परफॉर्मेंस है। अगर आप कॉपर प्राइस देखो, स्टील प्राइसेस में, ये सब में पॉजिटिव इनपुट्स आते हैं आजकल। अगर आप कभी भी देखो तो अभी भी स्टील में अच्छा ये आया था। एल्यूमिनियम कल जो रात को अगर एलएमई में ट्रेड हुआ था वो 2.5 मंथ्स के हाई पे है। सो हम्म ऑटो ये मेटल इंडेक्स में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस है और ये रहना चाहिए जैसा दिखता है। एंड हम्म आप अगर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस में देखते हो तो एक अच्छा कंसोलिडेशन से ये ऊपर आ रहा है सर, और देर इज हम्म सो मच ऑफ रूम इन द मेटल इंडेक्स टू मूव अप, करेक्ट। अगर आप हम्म ये देखोगे ये लेवल्स को इट हैज ब्रोकन दैट एंड इट इज ट्राइंग टू इंच अप, तो इधर करेक्ट। देर इज लॉट्स ऑफ रूम इन द मेटल सेक्टर टू मूव अप। तो हम हम्म लोग इंडिविजुअली स्टॉक्स को बाद में देखेंगे, पहले एक बार इंडिसेस देख लेते हैं। तो वी हैव कवर्ड टू, बैंक निफ्टी और ये ऑटो इंडेक्स भी कवर कर लिया और ये मेटल्स भी कर लिया। तो मेटल्स में एक तेजी मेरे को दिखता है सर, एक आउट हम्म परफॉर्मेंस को दिखता है। तो एनी टाइम मार्केट्स में करेक्शन आए तो द थिंग्स विच यू नीड टू जंप इनटू इज ऑटो इंडेक्स एज वेल एज मेटल इंडेक्स। एक और जो सेक्टर जो अभी अच्छा उभर के आया है लास्ट 1 वीक में, वो है पीएसयू बैंक्स। हम्म हाँ, ये पीएसयू बैंक्स का चार्ट है सर। हम्म ये मंथली चार्ट है, हम्म करेक्ट। इट इज अगेन मूविंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई, हम्म पीएसयू बैंक्स। और इसमें भी स्टॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल डिस्कस ऑन दो स्टॉक्स, बट एट द मोमेंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेटल इंडेक्स इज आल्सो रेसिंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई। हम्म तो ये सेक्टर भी एक अच्छा लगता है, पॉजिटिव है सर ये सेक्टर। डेली में अगर आप देखोगे रिलेटिव में, तो ये भी एक अच्छा कंसोलिडेशन के ऊपर एक आ गया है सर। ये एक अच्छा इसमें कंसोलिडेशन, एक लोअर लेवल्स में कंसोलिडेशन होके अब ये अपसाइड में ब्रेकआउट दिया रिलेटिव में। दिस हम्म इज पीएसयू बैंक रिलेटिव टू निफ्टी। तो आप जो ये लास्ट 15-20 डेज से दे रहे हो, ये आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आए। जो स्टेट बैंक हम्म 810 से ऊपर चला 860 870 तक, इट हैज कम बिकॉज ऑफ दिस, करेक्ट। तो ये आउट हम्म परफॉर्मेंस बैंक में, पीएसयू बैंक्स में प्रॉब्ली इट में मूव अप, देयर इज लॉट्स ऑफ रूम, 37 से ये 50 तक जा सकता है। तो विच इज अराउंड, समझ के चलो 35% का मूव अप मूव है, आउट परफॉर्मेंस का मूव है सर, इतना अच्छा, ये एक्सपेक्ट। निधि ने क्वेश्चन पूछे हैं कि ये इंडिकेटर का नाम क्या है जो आप नीचे यूज कर रहे हो? सर दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हम्म सॉरी रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन। हम्म दिस इज, ये बहुत ही मतलब आपको अगर सपोज टीसीएस अच्छा है कि इंफोसिस अच्छा है, तो आपको ये आरएससी इंडिकेटर से आपको समझेगा सर। इट हम्म इज एज गुड एज ए प्राइस। अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो दिस सेक्टर, दिस इंडेक्स
इज ए क्वाइट फिनोमिनल इंडेक्स। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं सर। तो दिस इज Okay. आरएससी, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव कंपैरेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे Hmm. निफ्टी पीएसयू इंडेक्स ऊपर है, एंड दिस लाइन अगर इफ इट इज मूविंग अप, तो आर एस निफ्टी पीएसयू बैंक्स इज मूविंग, इज इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ रिलेटिव टू निफ्टी, निफ्टी बेंचमार्क निफ्टी। Hmm. क्लियर सर? जो जिन्होंने पूछा था, Hmm. Yes, yes, yes. करेक्ट ना? तो कभी भी अगर आपको दो स्टॉक के बारे में लेना है, तो कभी भी आप ना ये सेक्टर इस पे ट्रेड कर सकते, दिस इज ए प्राइस इटसेल्फ। Hmm. मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर है जहां पे ये प्राइस देख के हम लोग ना उसके ऊपर मूविंग मोमेंटम ऑसिलेटर्स ड्रॉ करते हैं, एंड देन वी डिसाइड कि कितना ये उसमें अगर डाइवर्जेंस आया, इसमें प्राइस पैटर्न, जैसे ये तो आपको ये मैं प्राइस पैटर्न ही दिखा देता हूं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है सर। तो Hmm. नो ब्रेनर है कि आपको पीएसयू बैंक्स में रहना है सर, और नीचे में अच्छा कंसोलिडेशन होके ऊपर जा रहा है, एंड अपसाइड में रूम है। Hmm. तो पीएसयू बैंक्स विल बी आल्सो एक सेक्टर विच वी आर बुलिश इनटू। अब हम लोग जो अगर वीक वीक सेक्टर्स को अगर देखेंगे, तो उसमें आता है रियलिटी इंडेक्स है सर एक। इसमें Hmm. थोड़ा सा वीकनेस दिखा है, ये देखो। इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है कि ना इट इज फॉलिंग एवरी टाइम द हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई। Hmm. करेक्ट? तो आपको ये देखना है। तो अगर ये देखोगे ना, तो आपको समझता है कि कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, एंड इट Correct. इज डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट में है सर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट में है। ठीक है? तो अगर ये सेक्टर थोड़ा सा भी अगर ये अगर इंडेक्स थोड़ा सा भी नीचे गिरता है रिलेटिव में, तो अंडर मैसिव अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है। तो कभी भी Hmm. अगर निफ्टी गिरे, तो प्रॉब्ली आपका ध्यान निफ्टी रियलिटी स्टॉक्स में होना चाहिए, ऐसा है। और ये एब्सोल्यूट चार्ट्स में है, सॉरी, ये एब्सोल्यूट चार्ट्स में इट इज, ये हायर हायर लो ही बन रहा है सर, इसमें कोई इसमें ये नहीं है। ये देखो, Hmm. हायर हाई, ये हायर मींस अगेन द सेकंड लो इज लोअर, एंड दिस इज लोअर, एंड दिस इज लोअर, एंड दिस इज तो बहुत ही लोअर हो गया, और एक बेयर फ्लैग भी आ गया इसमें। दिस इज ए, यू Hmm. कैन कंसीडर दिस एज ए बेयर फ्लैग सर। तो हर जगह आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है, तो यू नीड टू बी स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस सेक्टर। Hmm. अगर मैं इसमें जस्ट एक एग्जांपल में जस्ट अपना टेक्निकल्स के सब्जेक्ट के ऊपर ही बात कर रहा हूं। अगर इसमें एक स्टॉक है जैसे लोडा सर, लोडा Hmm. डेवलपर्स, ठीक है? इसमें देखो अंडर परफॉर्मेंस ना स्टार्ट हो रहा है सर। Hmm. इट इज सिग्नलिंग ए मैसिव ब्रेकडाउन सर ऑन द डाउन साइड, और ये भी Hmm. आरएससी में भी ये गिर रहा है सर। नाउ दिस इज लोडा डेवलपर्स रिलेटेड टू ये निफ्टी है ये Hmm. निफ्टी के अगेंस्ट में। गेटिंग माय पॉइंट ना सर? पहले ना Correct, अ, correct. पहले रियलिटी इंडेक्स था, ये रियलिटी इंडेक्स है ये। और अभी ये लोधा डेवलपर्स है। Hmm. करेक्ट? अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है एक। आपको देखो डबल टॉप भी आया है यहाँ पे, ऐसा है। तो इसको ये इंडेक्स को वैसा देखते हैं बेसिकली, रिलेटिव टू एनी स्टॉक एनी इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हो। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर लुकिंग एट लोधा डेवलपर्स रिलेटिव टू निफ्टी इंडेक्स बेसिकली, एंड इट इज सिग्नलिंग ए ब्रेकडाउन। एब्सोल्यूट चार्ट्स में भी ब्रेकडाउन दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। Hmm. फिर हम लोग जो सेक्टर जो अभी मैसिव ड्रबिंग जिसमें दिख रहा है, वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स। इसमें भी क्लैरिटी आ जाएगा सर। Hmm. एब्सोल्यूट चार्ट्स में ब्रेकडाउन है, करेक्ट? Hmm. उसमें भी पेयर फ्लैग टाइप है। तो एब्सोल्यूट चार्ट्स में एक ब्रेकडाउन आ रहा है सर इसमें। और Hmm. रिलेटिव चार्ट्स में तो मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है, ये जो हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया था। Hmm. ये सेक्टर कभी भी अगर ऊपर आए, तो इट इज ए डेड कैट बाउंस ओनली। यहाँ पे तो मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है, एंड इट इज ब्रेकिंग। अगर कभी यूएस मार्केट्स गिरता है, तो दिस सेक्टर, ये मत सोचना कि ये सेक्टर बहुत पहले ही गिरा हुआ है। इस Hmm. सेक्टर में मैसिव अंडर परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड दिखेगा। Hmm. तो लॉ और फिर अभी इन्होंने ट्रम्प ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने आईटी सेक्टर को टच किया है, Hmm. फार्मा को अभी तक टच नहीं किया है।
तो एक हम्म। फियर वहां पे है। तो लेट अस टेक फार्मा इंडेक्स बेसिकली, कि फार्मा इंडेक्स कैसे परफॉर्म हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। हम्म। अभी भी रिलेटिव एब्सोल्यूट चार्ट्स में इट इज आउट परफॉर्मिंग सर। ठीक है, आउट हम्म। परफॉर्मेंस अभी भी है, एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस है। बट अगर कभी कुछ न्यूज गलत आता है तो यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन टाइप दिख रहा है। एंड हम्म। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये भी जब आपको दिखे कि ये लाइन टूट रहा है, फार्मा इंडेक्स रिलेटिव टू निफ्टी, अगर दिस रिलेटिव में, अगर इफ इट इज ब्रेकिंग डाउन बिलो दिस लेवल्स, ये लेवल्स में आई एम टॉकिंग अबाउट द हम्म। रिलेटिव चार्ट, तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस एक आ सकता है और मैसिव ड्रॉपिंग आ सकता है फार्मा इंडेक्स में। तो you should not touch reality index, you should not touch IT index. FMCG index also is, my sense is that will not perform, हम्म। not perform क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस है अभी भी, अंडर। Despite recent GST cuts. हाँ, डिस्पाइट रिसेंट जीएसटी का सेक्टर में मूवमेंट नहीं आया ऑन द बाई साइड से, नहीं हम्म। आया। नो, एक एक दिन स्पाइक देख के वापस नीचे आ गया ना सर, हम्म। स्पाइक देख के नीचे आ गया एंड इट इज ट्राइंग टू ब्रेक ऑन द डाउन साइड। और और अगर आप देखोगे तो ये पूरा अंडर परफॉर्मेंस है सर, यहाँ से पूरा अंडर हम्म। परफॉर्मेंस है तो लेट इट मूव अप अबाउट दिस लेवल, 58,000 के लेवल पे अभी 55,000 है। तो हम्म। प्रॉब्ली 6 5 6% का एक बार मूव होने दो, उसके बाद कॉन्सोलिडेट होने दो, देन वी कैन से नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई हम्म। थिंक ये जो तो उसमें हम लोग को क्लैरिटी विल कम सर गोइंग फॉरवर्ड कि हाउ, अभी मैसिव अंडर परफॉर्मेंस में ही है, चैनल डाउनसाइड में है एफएमसीजी में। हम्म। Correct. So we have discussed four sectors, 8 sectors, four sectors on the positive side and four sectors on the negative side से। Correct. करेक्ट, अभी स्टॉक्स ले लेते हैं। हम्म। पहले व्यूअर्स के स्टॉक्स ले लें कि मैं पहले जो मैंने स्टॉक्स मेरे I को think जो, your stocks first. Let's go ahead with your stocks first. या प्लीज, कोई स्टॉक है सर, नहीं तो मैं नहीं अपने नहीं, we'll स्टॉक। go ahead with your stocks first. अच्छा, मेरा स्टॉक्स, ओके 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 ओके। हम्म। दिस इज माय लिस्ट बेसिकली, जो मेरे को ठीक लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि नथिंग इज चीप इन आवर मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम, एक्सपेंसिव है मोस्ट ऑफ द। एक्सपेंसिव में आपको देखना पड़ेगा कि कभी कुछ करेक्ट होता है तो आपको देन यू कैन लुक टू बाय, बिकॉज सभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर एट एक्सपेंसिव लेवल्स। तो हम्म। कैसे स्टॉक्स हो सकता है कि ना, अगर आउट परफॉर्मेंस आया निफ्टी में, कैचअप प्ले कर रहा है, तो प्रॉब्ली दिस एक्सपेंसिव स्टॉक्स विल बिकम लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव। और सपोज हो सकता है कि अगर उनके रिजल्ट से अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं तो वहां पे थोड़ा है, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक एज ए डिस्क्लेमर, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट वेरी हाई पीई बेसिकली। हम्म। सो माय फर्स्ट स्टॉक वुड बी बैंक ऑफ बड़ौदा सर। ठीक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा एंड रिलेटिव टू निफ्टी है सर, हाँ। जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, इट इज ट्राइंग टू मूव अप हम्म। रिलेटिव में। और ये यहाँ पे अगर बैंक, ये दिस इज बैंक निफ्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा ये, एंड इट इज ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ ए ascending triangle। हम्म। दिस इज अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा, ascending triangle से ब्रेकआउट हो रहा है, तो प्रॉब्ली यू कैन एक्सपेक्ट एग्रेसिव टारगेट्स 295 300 होना चाहिए यहाँ पे। हम्म। बैंक एक अच्छा पैटर्न से एक ऊपर जा रहा है सर ये, हम्म। ascending triangle type है, bullish है। And on the relative also, it is trying to move up। The हम्म। second stock which I will pick up is State Bank of India। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखो, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई। Correct. करेक्ट, और अच्छा अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। हम्म। एंड द ब्यूटी इज दैट दिस स्टॉक हैज consolidated nicely sir at these levels हम्म। around 780 और 820 के आसपास इट हैज consolidated and moving up। तो कभी भी ऑन एनी करेक्टिव डिक्लाइंस यू शुड लुक फॉर बाइंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Probably the downside would be at around 800 820 के आसपास अगर आपको मिलता है, then you should look at buying। अगर अभी हम्म। करना है बाय तो एक स्टैगर वे में कर सकते हो, एक छोटा सा अमाउंट अभी बाय कर सकते हो एंड लुक टू accumulate on dips। The upside targets would be its all time high
आई थिंक इसका ऑल टाइम हाई अराउंड 9 11 913 के आसपास है, एंड माई Hmm. सेंस इज दैट इट कैन मूव टुवर्ड्स 950 975 इजीली सर, Correct. इफ मार्केट्स आर मूविंग अप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। वैसे ही आप ना कैनरा बैंक भी देख सकते हो, कैनरा बैंक ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स इट्स, ये अभी ऐसा चल रहा है, एक अच्छा मूव दिया है एंड ट्राइंग टू मूव अबाउट दिस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एट 130 लेवल्स। अबाउट Hmm. 130 तो मेरा सेंस है कि ना दिस शुड मूव टुवर्ड्स 160 170, इट्स ऑल टाइम हाई लेवल्स। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रेडार में रखना है। On any downside, you should be looking to accumulate from the PSU banks, basically. Absolutely. Correct. So, All the stocks are showing lots of outperformance उस hmm. बेसिस पे सर। या टेल मी सर। और एक बेस्ट बात पीएसयू बैंक्स का ये है कि ना इनका पी ना बहुत हार्डली 5 to 7 पे है, चल रहा है। स्टेट बैंक का बोलो तो आई थिंक 7 8 पे है, कैनरा Hmm. बैंक का 6 पे है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का देखो भी तो वो भी 7 पे है। तो चीप है सर एट दिस पॉइंट टाइम। और अगर जीएसटी का आपको प्ले करना भी है, और अगर इंटरेस्ट रेट कट्स का कुछ प्ले करना है, तो आई थिंक पीएसयू बैंक should be looked into. That's what my sense is. They are in a better position to play out. करेक्ट 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 करेक्ट। कल Hmm. अगर अगर कुछ रीजन के कारण मार्केट्स गिरते हैं, तो आपको ये Hmm. समझना है कि आपको कहाँ पे आपको लॉन्ग रखना है। करेक्ट, आपको मालूम होना चाहिए अभी पोर्टफोलियो अगर सपोज नीचे जाता है, सपोज मार्केट्स नीचे Hmm. जाता है, पोर्टफोलियो में ड्रॉपिंग आता है, तो यू नीड टू कम आउट ऑफ द स्टॉक्स जो वीक है बेसिकली, बिकॉज वीक विल गेट गेट वीकर। Hmm. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टाटा मोटर्स का। हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया था, ऑटो इंडेक्स इज लुकिंग वेरी गुड। मारुति आउट परफॉर्म किया, एमएनएम आउट परफॉर्म किया, आइचर मोटर आउट परफॉर्म किया, हीरो मोटर आउट परफॉर्म किया, अशोक लेलैंड ने भी आउट परफॉर्म किया, बट टाटा मोटर्स ना नीचे में आया है सर। Hmm. जस्ट मैं आपको एक टाटा मोटर का एक चार्ट बताता हूँ। तो दिस आपको ये कभी भी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, तो थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। ये देखो आउट अंडर परफॉर्म कर रहा है सर टाटा मोटर Hmm. क्लियरली। पूरा निफ्टी, अभी मैं यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स ऑटो इंडेक्स लगाता हूँ यहाँ पे राइट टुवर्ड्स माई Hmm. लेफ्ट में। ये देखो, दिस हैज मूव टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई, Hmm. but this is underperforming. It could not move above 720, this even not even this high it could not move। Hmm. तो जो अंडर परफॉर्म कर रहा है वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। पर हम लोग करते क्या है कि यूजली हम लोग जो अंडर परफॉर्म करते हैं उसको अपने, सिंस ये बड़ा नहीं है, इसमें ज्यादा रूम है ऊपर जाने का, सर मार्केट में ना मीन्स जो जो अच्छा चीज है ना वो और महंगा हो जाएगा, ये मेरे को समझ में आता है सर। बट जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, तो अंडर परफॉर्म तो बहुत मैसिवली करेगा वो स्टॉक। तो टाटा मोटर इज ए क्लियर अंडर परफॉर्मर। अगर आपके इसके बदले आपको ना, मैं मारुति अगर मैंने करता हूं, देखो मारुति देखो सर, ये ऐसा करके ब्रेकआउट आया है इसमें, और ये हम लोग ने पकड़ा भी है, वी कुड कैच दिस मूव। Absolutely. You were the first one in this show itself to talk about Maruti when the breakout had happened सो थैंक यू सर। last month. Yes, हाँ yes. हाँ, तो ब्यूटीफुल पार्ट क्या है कि टेक्निकल्स का यहाँ पे आपको दिख रहा है सर, कि यहाँ पे इट्स ट्राइंग टू इंच अप, देयर इज सम स्टोरी कुकिंग अप, एंड यू कैन डेफिनेटली, बट टाटा मोटर में कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। ये स्टॉक अंडर परफॉर्म ही करेगा जहां तक मेरा सेंस है। अगर इसको कभी बाइंग करना है, तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ना सर, अभी देखो यहाँ पे एक बेयर फ्लैग आया है, ये एक प्राइस ही समझो इसको, दिस इज टाटा मोटर रिलेटिव टू निफ्टी चार्ट। यहाँ पे एक बेयर फ्लैग आया है, ये फॉल के बाद एक बेयर फ्लैग आया है। अगर Even ये more dangerous. Yeah. हाँ, इट कैन फॉल, इट कैन अंडर परफॉर्म सिवियरली। हो सकता है कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स ऊपर जाए, लेकिन ये अंडर परफॉर्म करता रहेगा सर, प्रॉब्ली ये नीचे गिरेगा। तो यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी वेल्थ। वेल्थ कैन बी क्रिएटेड अगर आप ये चीज को स्टडी कर सकते हो तो। आई होप आई एम क्लियर सर। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं हम लोग का जो व्यूअर्स है उनको भी पूछना चाहूंगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री, गो अहेड, टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। I have kept relatively very simple the technicals basically। इसमें और complex में जा सकते हैं, but slowly and steadily we will go ahead on that। But at the moment मैंने बहुत ही simple रखा है। kept on the right hand side में मैंने ना 4 indicators रखे, and RSI रखा है basically relative strength comparison। This is relative to Nifty basically।
करेक्ट। और यहाँ पे मैंने मोमेंटम ऑसिलेटर रखा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड से। करेक्ट। वंडरफुल। अब द नेक्स्ट चार्ट विच आई कैन, अगर जब तक कोई स्टॉक नहीं आ रहा है मैं तब तक मैं बताता या। हूँ। ये हमारा भारतीय एयरटेल सर। अब ये स्टॉक देखो सर आप, नाइस आउट परफॉर्मेंस। निफ्टी गिर हम्म। रहा है, मैं लेफ्ट हैंड साइड में निफ्टी रखता हूँ। निफ्टी देखो, एक एक ये करता हुआ कौन मीन्स ऊपर, मीन्स इसमें स्लगिशनेस दिख रहा है आपको, बट ये हम्म। स्टॉक ना देखो आप ना, ये आउट परफॉर्म कर रहा है सर, एंड वेरी नाइसली आउट परफॉर्म। ये स्टॉक देखना सर आपको ना, अगर हम लोग ये देखो एक नाइस रिले, एक ट्रेंड लाइन भी होल्ड किया है, तो माय सेंस इज दैट दिस इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई, एंड उसके ऊपर ही जाना चाहिए ऐसा दिखता है। तो कभी भी बाजार गिरे, अभी भी ये थोड़ा ओवरबॉट लेवल्स में है, बट अगर कभी भी ये स्टॉक अगर कभी नीचे गिरे, भारतीय एयरटेल, अगर 1750 200 डीए में है 1789 के आसपास, अगर वो लेवल्स तक भी गिरता है, तो आई थिंक वर्थ एक्युमुलेशन विद लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। इसमें स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है भारतीय एयरटेल में, प्रॉब्ली करेक्ट। 21 के आसपास दिख रहा है सर ये स्टॉक। और अब देखो ना इसमें रिलेटिव में, इसमें एक आउट परफॉर्मेंस है रिलेटिव्स। So these all whichever we are stocks we are discussing, so these are purely on educational purpose only sir। हम्म। करेक्ट। अब ये देखो, ये स्टॉक एक आउट परफॉर्म कर रहा है, होल्ड कर रहा है नीचे में, एक स्पाइक आ गया तो समझ लो ये 2100 हो गया सर। हम्म। आउट परफॉर्मेंस है, तो जो आउट परफॉर्मेंस कर रहा है वो आउट परफॉर्मेंस करेगा सर। आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना है और जो डेटा पॉइंट्स है वो सब देखना है इसका। अगर वहां पे अगर कोई तकलीफ नहीं है तो मेरा सेंस है दिस विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। माय सेंस इज दैट इन ए ईयर्स टाइम भारतीय एयरटेल शुड बी एट अराउंड 2100 इफ Sounds ग्लोबल good. मार्केट्स आर देयर। फिर एक और स्टॉक है कैपलिन पॉइंट। ये हम्म। कैपलिन पॉइंट है, ये है एक स्टॉक जो ना आउट परफॉर्म कर रहा है सर, एंड माय सेंस इज दैट यहाँ पे भी अराउंड एक मूव है अप साइड में। देखो होल्डिंग द ट्रेंड लाइन वेरी नाइसली, एंड इट इज ट्राइंग टू मूव अबाउ इट्स, मूव टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई, वो 2625 है, अभी हम्म। 2200 चल रहा है, तो 10% का मूवमेंट है एक्सपेक्टेड यहाँ पे। ऑन एनी डिक्लाइंस वन शुड बी लुकिंग इनटू दिस स्टॉक। आउट परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पे। हम्म। कैपिटल पॉइंट, इट्स होल्डिंग ऑन टू द आरएससी, रिलेटिव स्ट्रेंथ है जो निफ्टी का, इसका आर कैपिटल पॉइंट का, इट इज होल्डिंग ऑन मूविंग अप। देन जो स्टॉक अभी, एक और जो स्टॉक मेरे को जो दिखता है वो आउट परफॉर्म करते हुए, वो है एचबीएल इंजीनियरिंग। सो एचबीएल इंजीनियरिंग कर, एचबीएल इंजीनियरिंग, एचबीएल पावर था पहले। एंड ये देखो, ऐसा जब मैं, ऐसा यहाँ पे ऐसा रहता है ना, तो उस टाइम पे आपको स्टॉक्स को, ये नीड्स टू कम टू योर रेडार। अभी भी है सर, ऐसा नहीं है। ये देखो कितना अच्छा इसने ना ब्रेकआउट दिया है रिलेटिव में, और फिर जब ये रैली आता है तो ना, ये रैली ऐसा 400 का 826 हो गया, तो इसका हम्म। 200 डीएमए है अराउंड 597 600 के आसपास है, अभी 826 है। एनी करेक्टिव डिक्लाइंस टूवर्ड्स आई थिंक 675, दिस लेवल्स, ये जो गैप लेवल्स है यहाँ पे, अगर ये लेवल्स पे आता है तो यू नीड टू लुक इट टू दिस स्टॉक विद लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। इसमें आउट परफॉर्मेंस है और मैसिव आउट परफॉर्मेंस है सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। एक है पवन आनंद का और एक है जीवन का। पवन का पहले ले लेता हूँ। प्लीज प्लीज। Mark Mobius said the Sensex will reach 1 lakh in 1 year. What is your view? 1 लाख इन 1 ईयर? मतलब 26 September. By next Diwali, you can say is 1 lakh. By next Diwali. Am I correct in understanding that, Pawan? By next Diwali 2026? Yeah. Yeah. So probably सर इसका अगर पॉजिटिव, अगर अगर हम लोग उस, अगर हम लोग अपने अल्टरनेटिव एक्सपेक्ट्स देखते हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स कट का बात चल रहा है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हो सकता है। एंड सेकेंड इज फंड फ्लोज, फंड फ्लोज पॉजिटिव है ऑल ओवर द ग्लोब सर, इक्विटीज के लिए।
तो वो दो रीजन है, बट हैविंग सेड दैट इक्विटीज बहुत कम परफॉर्म कर रहे हैं सर। हो सकता है कि अगर आप यूएस में भी देखो तो मैग्निफिसेंट 70, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। आई थिंक एज आई डिस्कस लास्ट टाइम ऑल्सो, माइक्रोसॉफ्ट वाज अभी $4 ट्रिलियन का हो गया। तो ये पहले सर माइक्रोसॉफ्ट वाज कितना 1.5 years बैक इट वाज $2.7 ट्रिलियन। वन $2.7 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन किया। तो हो सकता है हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स में मूव अप, but broader markets may not move up. So that's what my sense is. And ओके। so many headwinds are there. Trump का tariff का तो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। The best case scenario 1 लाख बोलते हैं तो my sense is that we may be market performer ही रहेंगे, unless and दो रीजन के कारण we can move up. Okay, two reasons we can move up. अगर कुछ सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड होता है ट्रम्प के टैरिफ में, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ में अगर कुछ सॉफ्टनिंग स्टैंड हो जाए, तो यहाँ पे मैसिव जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है अपने को। तो उसके कारण वी कैन मूव अबव इट्स अबव ऑल टाइम हाई निफ्टी का 26 टू करेक्ट। 17। देखिए प्रद्युत जी, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है हाँ पवन जी, कि देखिए दिस इज मार्केट इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल इन द शॉर्ट टर्म। ओके। अभी जो हम लोग देखिए कुछ दिन पहले वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट बुलिश साइड में बात कर रहे थे, अभी करेक्ट बेरिश साइड में बात कर रहे हैं। दे आर प्योरली टेक्निकल फैक्टर्स, and only one thing about the technical status of the market, that it does not take much time to change. But if you look at overall bigger macroeconomic trend, economic trend, of course, India is growing. There are so many things in favor of India, right? So yes, absolutely. Why not? Sensex might cross 1 lakh, Sensex might cross 1,20,000. It could be possible. So what Pradij is talking right now is he's talking about short-term technical status of the market. Currently, the factors that is affecting the market. Technically, the stocks relatively looking weak, and it might change just overnight from the bullish market. And again, so I think that वेरी is a different altogether thing. But in the short term, currently, what Pradij is talking about, that yes, the market is looking a little bit weak. There are certain stocks sectors looking weak, and at the same time there are certain stocks sectors which are looking strong. But yes, absolutely. And again, let me tell you, market goes ups and down in the short term, but in the long term market always goes up. आप 100 years of history you take in the market, कितने बड़े बड़े चीज आए, वर्ल्ड वार आया, ग्रेट डिप्रेशन आया, लीमैन ब्रदर्स डॉट कॉम बबल बास्ट, कितने चीजें हुए हैं, बट इवेंचुअली मार्केट गोज अप एंड मेक्स a new high, breaks out. So absolutely possible. And market have to, Sensex has to go to 1 lakh rupees. There is no denying. It may not be in next 1 year, then 1.5 year, but it has to go up. Otherwise कहाँ जाएगा? नीचे जाके वो यहीं पे तो अटकते नहीं रहेगा ना हमेशा। तो market has to go up. But yes, in the short term, at this point of time, market looking a little bit volatile. प्रद्युत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जीवन से पीएनबी का वेरी ऊपर। नाइसली सर, वेरी नाइसली पुट अप। एग्जैक्टली सर, तो दो रीजन हो सकता है मार्केट्स का ऊपर जाने का। एक है कि जो अभी हेडविंड है ट्रम्प का टैरिफ एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पे अगर कुछ सॉफ्टनिंग स्टैंड होता है 50% इज ट्यू ह्यूज। अगर वहां से अगर 15-20% पे कुछ आता है, सेटल होता है, तो प्रॉब्ली मैसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। या प्रद्युत फिर जी, यहाँ पे ना मेरा टेक थोड़ा अलग है। ओके। मेरा टेक ये है कि देखिए, हाँ ये दोनों factors may be irrelevant after a few months. There will be new factors that will come, which करेक्ट probably we don't know as yet, right? करेक्ट So at this point of time, as you say, yes, absolutely. अगर टैरिफ में अभी नेगोशिएशन डिस्कशंस हो ही रहा है, वहां पे आएगा तो करेक्ट। इमीडिएट ट्रिगर है ही है। इंटरेस्ट हाँ रेट कट का एक ट्रिगर बहुत बड़ा है ही है, 100% है। बट अगेन टू गो टू 1 lakh एंड बियॉन्ड दैट, there has to be more positive factors which we are not in the knowledge at this point of time, probably, which will वेरी emerge. So let's skip the chapter. But anyway, it's a good discussion to have. We need to have both. At the time of when there's a concern, there's a worry, we need to discuss as well those things. करेक्ट uh, वेरी। है ना? सो या प्रदीप जी, पीएनबी का ऊपर बताइए ना, जीवन जी का क्वेश्चन है।
पंजाब नेशनल बैंक। Yes. वन शुड बी लुकिंग विद द बायस, इसमें पॉजिटिव होना चाहिए सर इसमें, Mm-hmm. पंजाब नेशनल बैंक में। एंड एज आई सेड कि पीएसयू बैंक एक रिलेटिवली चीप एक सेक्टर है जहां पे एक दिख रहा है कि ना एक मोमेंटम बिल्डअप होते हुए। तो एज लॉन्ग एज 95, अगर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है तो 95 वुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट, एंड माय सेंस इज दैट इट इज मूविंग टुवर्ड्स 140 लेवल्स। Okay. Wow. या Great. पॉजिटिव है But इस। again, it's not a recommendation, हाँ, guys. इट्स नॉट इस सेक्टर में एज आई सेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, these stocks are looking good, sir. Absolutely. Yeah, yeah. Wonderful. I think we are almost coming to an end of this program today. You know, anyway, I think Pradyut, first of all, to एक thank और you so स्टॉक है much. जो जाने से पहले मैं बता सकता, मीन जस्ट उसका जिक्र करना चाहता हूँ। एक हाँ. यस बैंक लोअर लेवल्स में, दिस स्टॉक हैज नॉट परफॉर्म, ऐसा है, बट इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहा है सर। और अगर Mm-hmm. आप देखोगे, अगर मैं आपको एक रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से बताता हूँ इसमें, तो इट इज होल्डिंग ऑन टू इट्स, ये एक लेवल है यहाँ पे ना, एक अच्छा सपोर्ट से बाउंस हो रहा है सर इसमें, और मोमेंटम टुवर्ड्स द अपसाइड इसमें आ रहा है सर, Mm-hmm. यस बैंक में। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जो वेरी लॉन्ग टर्म 3 इयर्स पर्सपेक्टिव ऐसा अगर लेना चाहते हो, तो इसमें डाउन साइड आई थिंक 15-16 के आसपास नहीं, मीन्स वहां पे सपोर्ट है इसको। एंड माय सेंस इज दैट ये अराउंड 28-29 तक जा सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। Okay. मतलब still we have got. अच्छा, Axis Bank, विजय का लास्ट स्टॉक दैट वी आर टेकिंग, विजय, एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक इज एन अवॉइड जहां तक मेरे को दिखता है, रिजल्ट्स इसके अच्छे नहीं थे, और मार्केट परफॉर्मर ही रहेगा ऐसा जहां तक मेरा सेंस है सर। रिलेटिव स्ट्रेंथ लुक्स गुड. नहीं, नीचे है ना सर इसका, देखो अंडर परफॉर्म कर रहा है ना सर, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है Mm-hmm. ये अंडर परफॉर्मेंस पे है सर। तो अंडर परफॉर्मर ही है, and, ये अगर इसके बदले अगर आप ना ये देखते हो, स्टेट बैंक देखते हो, मैं राइट हैंड साइड में स्टेट बैंक लगाता हूँ सर आपको, ये इसका एनीवे एब्सोल्यूट चार्ट्स में इसका 1050 इज ए गुड सपोर्ट, एज लॉन्ग एज 1050 इज एबल टू होल्ड ऑन एनी डाउन साइड, आपको ये बाय कर सकते हो विथ, बट मोमेंटम इसमें जो बिल्डअप होगा वो 1250 के ऊपर ही होगा सर। एट दिस पॉइंट में इट्स नो मैन लैंड में। तो support would be at 1050 and momentum will come about 1250 levels. Okay, It has great. given a sharp up move in last 1 week. तो at this point में नोट कुछ ट्रेड निकल के नहीं आ रहा है सर यहाँ पे, और मार्केट परफॉर्मर ही है अगर ये आप रिलेटिव देखते हो तो। बट अगर आप इसके अगेंस्ट में एसबीआई देखते हो सर, एसबीआई में एक अच्छा सा कंसोलिडेशन होके ऊपर आ रहा है सर ये, एंड इट्स Mm-hmm. मूविंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई। ये देखो, ये राइट हैंड साइड में एक्सिस बैंक है जो इसका ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, बट ये टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो माय सेंस इज दैट पीएसयू बैंक्स may outperform private banks. That's what my sense is. Wonderful, wonderful. I think one more question or somebody tell me PNB Bank, please tell one more time about PNB Bank. अच्छा, अनिमेश ने पूछा है कि और एक बार बताइए PNB बैंक का ऊपर. पीएनबी बैंक, पीएनबी के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक। करेक्ट. देखो, द बेस्ट, अगर आपको मैं टेक्निकली एक थोड़ा सा, आई विल टेक 2 minutes एंड आई विल वाइंड अप। हम्म. इट हैज मूव्ड अप, इट हैज टेकन सपोर्ट एट इट्स 200 डीएमए, 200 डीएमए इज एट द येलो लाइन इज इट्स 200 डीएमए, व्हिच इज कमिंग अराउंड 102 लेवल्स में। तो 102 लेवल से एक अच्छा सपोर्ट आता है इसका यहाँ पे सर, करेक्ट। और हम्म. इट इज नॉट ट्राइंग टू मूव अबव इट्स इमीडिएट हर्डल विच इज एट 116 लेवल्स। तो एनी टाइम एनी मूव अबव 116 मेरे को लगता है इसमें आना चाहिए, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई 140 लेवल्स पे। सॉरी, ओके. इमीडिएट इमीडिएट जो हर्डल्स है इसका 140 लेवल्स तक आना चाहिए। तो एक्मुलेशन होना चाहिए ऑन डिप्स में 105, 105, 109 के आसपास, एंड मोर एक्मुलेशन एट 100 लेवल्स, 102 लेवल्स में। एंड मेरे को लगता है 95 के नीचे नहीं जाना चाहिए, एंड एनीथिंग अबव 116 मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए विथ टारगेट एट 140 लेवल्स इमीडिएटली सर। विथ ए स्विंग ट्रेड आप इसको कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल. I इस think I think these are all investment, not for trading. These are purely for करेक्ट, investments. And again, these are not recommendation. Okay. We need to make it clear again and again and again.
These are not All these are purely recommendations. for his educational purpose. एब्सोल्युटली। देखिए, आज प्रद्युत जी ने काफी सारी चीजें हम लोग को सिखाए हैं। ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का चीजें सिखाए हैं, कंसोलिडेशन का चीजें सिखाए सिखाए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली मोमेंटम के लिए। ट्रेंड लॉन्ग टर्म मोमेंटम, ऑफ कोर्स नॉट इंट्राडे काइंड ऑफ ए मोमेंटम, positional momentum. So, Pradyuji, really thank you so much for doing such a wonderful session, which is quite educational at the same time with a practical real-time market में. And I would like to thank all the viewers as well. Vijay, Sachin, Pawan, Krishna, Jivan, Arun, Animesh, all of you. Thank you so much, guys. We'll Thank you again so see much. you next time. Thank you so much, sir. Looking forward. Thank you. Bye-bye, guys. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.